بلیٹن کے آغاز میں افسوسناک خبر شامل کریں گے مظفر آباد سے، جہاں جیپ کھائی میں جا گری۔ منڈا بانڈی کے مقام پر پیش آنے والے حادثے میں 5 افراد موقع پر جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے مظفر آباد سے، جہاں جیپ کھائی میں جا گری۔ اطلاعات کے مطابق منڈا بانڈی کے مقام پر پیش آنے والے اس حادثے میں اب تک 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے نصیر چودھری سے۔ نصیر، بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا، زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ نصیر چودھری سے اب رابطہ قائم کریں گے۔ مظفر آباد میں جیپ کھائی میں جا گری۔ منڈا بانڈی کے مقام پر یہ حادثہ پیش آیا، جس میں اطلاعات کے مطابق 5 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن اس وقت بھی جاری ہے۔ یہ وہ افسوسناک مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی اونچائی سے یہ جیپ اس گہری کھائی میں جا گری، جس کے بعد 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے نصیر چودھری سے۔ نصیر، بتائیے گا کہ حادثہ کیسے پیش آیا، زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، یہ ریالہ گجرات سے گڑی دوبٹہ آنے والی مسافر جیپ ہے، یہ منڈا بانڈی کے مقام پر حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ اس میں 10 سے 12 لوگ جو ہیں وہ سوار تھے، جن میں سے 5 لوگ جو ہیں وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 4 افراد زخمی ہیں۔ جو زخمی ہونے والے تھے ان کو ریسکیو کر کے سی ایم مظفر آباد منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ جو جاں بحق ہو گئی تھی ان کی میتیں اور سی ایچ گڑی دوبٹہ میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ وزارت آزاد کشمیر نے بھی اس کا افسوس کا اظہار کیا اور انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر جو زخمی ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے بہتر انتظامات کیے جائیں اور جو جاں بحق ہو چکے ہیں ان کی میتیں ورثہ تک پہنچائی جائیں۔ بہت بہت شکریہ نصیر چودھری، اپڈیٹ کر رہے تھے مظفر آباد سے۔ کراچی میں مسیحا کی غفلت کا شکار ہونے والی ننھی نشوہ دم توڑ گئی۔ 9 ماہ کی نشوہ نے کراچی کے دارالصحت اسپتال میں دم توڑ دیا۔ نشوہ کو مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگایا گیا تھا، جس کے بعد اس کی حالت خیر ہو گئی اور آج وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ انتہائی افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے کراچی سے، جہاں مسیحا کی غفلت کا شکار ہونے والی ننھی نشوہ دم توڑ گئی۔ 9 ماہ کی نشوہ نے کراچی کے دارالصحت ہسپتال میں دم توڑ دیا ہے۔ نشوہ کو مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگایا گیا تھا، جس کے بعد اس کی حالت غیر ہو گئی اور آج وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عاصم اشرف سے۔ عاصم، بتائیے گا اس بارے میں۔ بالکل، دیکھیں جی، افسوسناک اطلاع سامنے آئی ہے۔ ننھی نشوہ جو گلستان جوہر کی رہائشی تھی اور دارالصحت اسپتال میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے کے باعث اس کی جو کیفیت ہوئی تھی اس سے جو ہے وہ سبھی واقف تھے۔ لیاقت نیشنل اسپتال میں وہ بچی جو ہے وہ زیر علاج تھی، آئی سی یو میں رہی۔ ڈاکٹر اس کی صحت کے حوالے سے کبھی پر امید ہو جاتے تھے، لیکن اب جو اطلاع آئی ہے لیاقت نیشنل اسپتال کے ترجمان کے مطابق جو نشوہ ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ لیاقت نیشنل اسپتال کے آئی سی یو میں زیر علاج نشوہ کا جو دماغ ہے وہ ڈاکٹرز کے مطابق جو ہے وہ 71% طور پر جو ہے وہ مفلوج ہو چکا تھا، جبکہ نشوہ جو ہے وہ جو نچلا حصہ ہے نشوہ کے بدن کا وہ بھی جو ہے وہ مفلوج ہو چکا تھا، ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اب وہ جو ہے وہ نشوہ تکلیف برداشت کرتے کرتے جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہے اور وہ انتقال کر گئی ہے، اور اس حوالے سے جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اب جو ننھی نشوہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہی۔ جی عاصم اشرف، یہ بتائیے گا کہ دارالصحت ہسپتال کا اس حوالے سے کیا آفیشل موقف ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو کوئی ابھی تک آفیشل موقف سامنے نہیں آیا ہے، لیکن کل جو دارالصحت کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ جو ان کا جو ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں جو ڈائریکٹر تھے شہزاد عالم، ڈاکٹر شہزاد عالم، ان کا جو ہے وہ استعفیٰ منظور ہوا تھا، جبکہ اس کے علاوہ جو تمام اسٹاف تھا جو ننھی نشوہ کے لیے جو رکھا گیا تھا اور ان کو بھی سب کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ اب تک جو ہے وہ اس کیس میں 4 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، جو اس میں مرکزی ملزم تھا آغا معیز جو اسٹاف نرس تھا جس نے انجیکشن لگایا تھا، جبکہ جو ہیڈ نرس کی صوبیہ وہ بھی گرفتار ہیں، حراست میں پولیس کی۔ باقی 2 ملازمین بھی جو ہے وہ اس وقت پولیس کی حراست میں، ان سے تفتیش کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ جی، اور جو لوگ حراست میں ہیں ان کی جانب سے کوئی انکشاف کیا گیا عاصم؟ دیکھیں، آغا معیز کی جانب سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں، جبکہ ابھی 2 دن قبل آغا معیز کی جو بڑی بہن ہے اریبہ، انہوں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو جاری کی تھی، اپنا ویڈیو بیان، اور یہ کہا تھا کہ آغا معیز سے جو بات ہوئی ہے ان کی، اس نے کہا ہے کہ اس کو پھنسایا گیا ہے کیونکہ آغا معیز اس کی بہن کے مطابق 2 ہفتے سے چھٹیوں پر تھا، اور جس دن ننھی نشوہ کا جو یہ کیس بگڑا ہے، معیز کو ان کے بہن کا الزام ہے، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کو اسپتال بلا کر جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کہ تم یہ کیس اپنے سر پر لے لو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اس طرح کے مزید انکشافات بھی ہوتے رہے۔ جو ہیڈ نرس ہے
टोबिया, उसको भी कल पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसकी जानिब से भी कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। उसका कहना है कि जो है वो आगा मुइज ने जो पर्दा डाला हुआ था निशवा के बेड के अतराफ में, उसको नहीं पता है कि उसने कौन सा इंजेक्शन लगाया है, जबकि बाकी 2 मुलाजमीन भी जो है वो इस तरह के मुतजाद बयानात दे रहे हैं। पुलिस जो है वो इस हवाले से तफ्तीश कर रही है। अब ये केस जो है वो मजीद असरअंदाज होगा, मजीद जो है वो इस पे तुंदही से तफ्तीश हो सकेगी, क्योंकि निशवा जो है वो अब दुनिया में नहीं रही है। निशवा की जिंदगी से खेलने वाले लोग जो है वो पुलिस की हिरासत में जरूर हैं। आसिफ अशरफ, ये बताइएगा कि निशवा को किस मर्ज के इलाज के लिए दारुल सेहत लाया गया था? देखिए, निशवा के वालिद थे कैसर अली। उनका ये कहना था कि वो आज से कोई 2 हफ्ते कबल अपनी बेटी को, बल्कि 2 जुड़वा ये बहनें थी निशवा के साथ, उसकी एक और भी बहन थी, दोनों को डायरिया की तकलीफ के बायस से जिस तरह वालिदैन अस्पताल ले जाते हैं, उस तरह जो है वो मामूल के मुताबिक वो दारुल सेहत अस्पताल लाए थे। और दारुल सेहत अस्पताल में उस बच्ची को ड्रिप चढ़ाने का ये कहा गया था कि जी ये डायरिया है, बच्चों के जिस्म से पानी का अखराज होता है तेजी से, तो उस हवाले से जो है वो बच्ची को ड्रिप लगेगी, इंजेक्शन लगेगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि 2 हफ्ते बाद सूरत हाल इस तरह हो जाएगी, क्योंकि जब वाकया ये 5 दिन बाद सामने आया वो बच्ची के अस्पताल में दाखिले के बाद, तो ये इंकशाफात सामने आए कि उस बच्ची को दूसरे ही दिन जब वो एडमिट थी दारुल सेहत अस्पताल में, तो ये गफलत हुई थी कि इंजेक्शन जो आमतौर पर बच्चों को 2 cc के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन उससे आगा मुइज नामी स्टाफ नर्स ने जो है वो गफलत का मुजाहरा करते हुए उस बच्ची को 10 cc का जो है वो इंजेक्शन बजाय ड्रिप में लगाने के उल्टा जो है वो उस बच्ची को नन्ही मासूम निशवा के हाथ पे लगा हुआ जो कैनोला होता है उसमें जो है वो उतार दिया था। फौरी तौर पर जब तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर भी वहां पर बजाय इसको कि उसको तिब्बी इमदाद दी जाती, इस वाक़े को उसके वालिद कैसर अली से छुपाते रहे। और कैसर अली ने ये इल्जाम भी आयद किया था कि उसको 4 दिन तक दारुल सेहत अस्पताल की इंतजामिया सिर्फ इस बात पर रजामंद करती रही कि बच्ची ठीक हो जाएगी, आप कहीं शिकायत ना करें, बच्ची ICU में है, बच्ची वेंटिलेटर पे है और वो जल्द जो है वो सेहतयाब होगी। लेकिन जब पानी सर से ऊंचा होने लगा तो कैसर अली जो वालिद थे निशवा के, उन्होंने जो है वो मीडिया का सहारा लिया, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। इस तरह ये केस सामने आया और फिर मुबैना जो गफलत थी वो बाकायदा जुर्म में तब्दील होती हुई हमें नजर आ रही थी। अच्छा आसिफ अशरफ, ये बताइएगा कि इस सारे मामले का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है और क्या आगा मुइज की जो नर्सिंग असनाद हैं वो चेक की गई हैं? देखें, इस हवाले से जब बात हुई थी शारा फैसल थाने की हुदूद में ये दारुल सेहत अस्पताल जो है वो आता है, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पर जो थे उन्होंने जब आगा मुइज को हिरासत में लेके साथ तफ्तीश शुरू की थी तो पहले ही रात ये चीज सामने आ गई थी कि आगा मुइज जो है वो स्टाफ नर्स है और उसने ये एक अजीब इंकशाफ सामने आया था। वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर सीनियर हूँ और ये काम करता रहा हूँ, लेकिन जो है वो उसका जो असनाद से जो चीज सामने आई है उसको सिर्फ 1.5 साल हुआ है नर्सिंग का काम सीखे हुए, या नर्सिंग का एक शोबा होता है बहुत बड़ा, उसको सिर्फ 1.5 साल हुआ और उसको जो है वो जो पीडिया वार्ड कहलाता है ये बच्चों का, उसमें जो है वो किस तरह तैनात किया गया ये अस्पताल इंतजामिया अब भी बताने से कासिर है, बल्कि जो है वो इससे मुस्तकिल जो है वो जोर दिया जाता रहा है कि नहीं ये तमाम जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग भी होती है, तमाम स्टाफ जो है वो ट्रेंड होता है, वो बच्चों के हवाले से भी ट्रेंड होता है और बड़े मरीजों के हवाले से भी होता है। लेकिन जो कहानी थी वो दूसरी जानिब और संगीन इस वजह से हो गई कि उस आगा मुइज ने जब एतराफ किया कि वो 16 घंटे से मुस्तकिल ड्यूटी पर था और उसको नहीं पता कि उसने ये हरकत कैसे कर दी। आसिफ अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त सिंध असेंबली में अपोजिशन रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नकवी साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये निशवा का पेश आया है और ये कोई अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। सिंध हुकूमत की इस नाकिस कारकर्दगी पर अपोजिशन क्यों खामोश है? पहले तो मैं पहले खाना से ताज़ियत करना चाहूँगा। हाँ, ये बड़ा आंदोलनाक वाक़या है माँ बाप के लिए, लेकिन उससे साथ साथ ये माशरे के लिए कि जिस माशरे में डॉक्टर इतने फिरदौस शमीम नकवी से हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। उन्होंने इस बात पर इजहार अफसोस किया कि निशवा अब इस दुनिया में नहीं रही है और साथ ही ये कहा कि ये जो वाक़या है इसका ज़िम्मेदार सारे मुआशरे को ठहराना चाहिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नन्ही निशवा जिसको अभी इस दुनिया में आए हुए 9 माह हुए थे, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर पॉलिटिकल रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नुसरत साहिबा, आपको भी पता चला होगा कि निशवा की डेथ हो गई है, किस तरह रिएक्ट करेंगी आप? बहुत शुक्रिया जनाब। बिल्कुल जी, अभी थोड़ी देर पहले ये चैनल्स पे ही पता चला निशवा की डेथ हो गई है, लेकिन माने बहुत ही ये जो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी, अभी तक
सबको ही दुख हुआ होगा निश्वा का। इतनी प्यारी मासूम बच्ची जिसका कसूर ये था कि वो दारुस्सेहत में एडमिट की गई, और तो उसका कोई कसूर नहीं था ना, और फिर वहाँ गलत इंजेक्शन लगाकर उस बच्ची को इस मकाम तक पहुंचा दिया गया। हम सब इसी तरह हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों को ले जाते हैं ना, कि खुदा न खास्ता कोई थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो करीबी जो हॉस्पिटल होता है सब वहां भागते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत और इनकी हालत अब एक जैसी अब हम नहीं, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले अरीब की हलाकत हुई, उसके बाद नन्ना एहसन इस दुनिया से चला गया, अब निशवा चली गई, उससे पहले वो जो बिरयानी वाला वाकया था वो पेश आया। एक के बाद एक करके अगर किसी भी एक वाकये में करार वाकई सजा दी जाती है, आपको वो रेस्टोरेंट वाला वाकया याद होगा जिसमें इंपोर्टेड खाना खाने से बच्चों की डेथ हो गई थी, लेकिन हर केस में अल्टीमेटली मुजरिम का तयन नहीं होता, उससे करार वाकई सजा नहीं मिलती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निशवा की तरह एहसन और अहमद और मोहम्मद थे, ऐसे मासूम बच्चे, ऐसे बहुत सारे जो आपने नाम लिए। देखिए जी, औलाद वाला जो भी होगा वो किस तरह ये बर्दाश्त कर पाएगा, ये तो दुख सबके साझे होते हैं। ये इस तरह की जो नेग्लिजेंसी हो रही है ना हॉस्पिटल्स में, ये सिर्फ और सिर्फ गलत तरीकेकार है। जो मुजरिम को सही तौर पर सजा नहीं मिल रही, वो आजाद होकर घूमते हैं, और फिर माँ बाप के दिल पर किस तरह वो जुल्म हो रहा होता है कि वो उन्हीं मुजरिमों को आजाद घूमते फिरते देखे, और उनका अपना घर का बंदा मासूम बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों। तो ये तो गवर्नमेंट का काम होता है, हुकूमत वक्त का काम होता है। खुदारा इस तरह की चीजों को देखें और उन मुजरिमों को किसी एक को तो सजा दिलवा दें। हम तो ये चीखते रहते हैं कोई एक ही मुजरिम पकड़ा जाए, एक मुजरिम को सजा हो तो किसी के सीने पर तो ठंडक पहुंचे, किसी माँ के सीने पर तो ठंडे छींटे पड़े। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी, अपना रिस्पांस देने के लिए। रहनुमा फंक्शनल लीग का ये कहना था कि जब तक मुजरिमों को सजा नहीं होगी तब तक इस तरह के वाकयात की रोकथाम मुश्किल है। कराची में डॉक्टर की बिलाल कॉलोनी में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 4 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। जांबाग रजिया के वालिद का कहना है कि बच्ची को खसरे में तेज बुखार होने पर अस्पताल लाए थे, गलत इंजेक्शन लगने से जांबाग हो गई। पुलिस ने निजी क्लिनिक के डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। अभी रिश्वा का जो खबर थी वो पुरानी नहीं हुई थी कि एक और वाकया पेश आ गया। कराची में डॉक्टर की मुबैना गफलत का एक और वाकया, कोरंगी बिलाल कॉलोनी में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 4 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। कराची में निजी क्लिनिक्स मौत के शॉपिंग मॉल बन गए, मसीहा जल्लाद बन गए और बीमार बच्चों की जिंदगियों से खेलने लगे। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 4 साला रजिया को खसरा में तेज बुखार की हालत में मकामी क्लिनिक लाया गया। डॉक्टर ने मुबैना गफलत का मुजाहरा करते हुए गलत इंजेक्शन लगाकर बच्ची से जिंदगी छीन ली। उसको खसरा हुआ था, मैं इसको डॉक्टर के पास ले गया, गलत इंजेक्शन लगाया तो बोले जाके केस कर, जो करना कर ले। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने बच्ची को सेपोटेक्स का इंजेक्शन लगाया, जिससे इसकी हालत संभलने के बजाय मजीद बिगड़ गई और बच्ची जान की बाजी हार गई। बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन लवाहिकीन पोस्टमार्टम करवाए बगैर लाश घर ले गए। पुलिस ने वाकये में मुलव्विस डॉक्टर इमरान को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ मोहम्मद अहमद, न्यू न्यूज़, कराची। कराची में सफाकियत की पुरस्कार वारदात। औरंगी टाउन गुलशन बहार में घर से तेजधार आले से मां और 2 बच्चों की गला कटी लाशें मिली हैं। मां और दोनों जुड़वा बच्चों की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। मेडिकल लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वर के मुताबिक 3 साला अब्दुल हादी के गले को तेजधार आले से काटा गया। अब्दुल हादी के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि जांबाग अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। कराची में इंसानियत सोज वाकिया। औरंगी टाउन गुलशन बिहार में सफाक कातिल ने हंसता भसता घर उजाड़ दिया। तेजधार आले से मां और 2 बच्चों की गला कटी लाशें मिली। तीनों को तेजधार आले से कत्ल किया गया। मरने वाले बहन भाई जुड़वा थे। बाप जब घर पहुंचा तो लाशें मिली। चीख व पुकार पर इलाका मकीन भी जमा हो गए।
समझ नहीं आ रहा कि किस तरह ये वाकया पेश आया। मकतूला के देवर अब्दुल कयूम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भाई की किसी से दुश्मनी नहीं थी, जब वो घर आए तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। घर से दुकान की तरफ गए, वापसी जब आए हैं तो देखिए बाहर से कुंडी लगी हुआ था। अभी कुछ समझ में आ नहीं क्या मसला है, या दहशतगर्दी क्या दुश्मनी क्या, कुछ नहीं पता। दूसरी जानिब मां और जुड़वा बच्चों की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। एमएलओ के मुताबिक मकतूलिन को तेज धार आले से कत्ल किया गया, ताहम जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं। जिस तरह तीनों को एक ही साथ किया गया है, डाउट ये है कि इनको कोई ऐसा चीज़ नहीं दी है, बल्कि इनको पकड़ के ज़बरदस्ती इनके साथ ये किया गया है। इसके अलावा मैंने बच्चे का पूरा एग्जामिनेशन किया, बच्चे के ऊपर और कोई तशद्दुद का निशान नहीं पाया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मोहम्मद अहमद, न्यूज़ कराची। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात में इंटर का 5वां पर्चा भी आउट हो गया। इंटरमीडिएट का रियासी 2 का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। हल शुदा जवाब भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, सिंध हुकूमत किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आती है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिम अशरफ से। आसिम, बताइएगा इस बारे में। वैसे इस बारे में हम रोजाना ही बता रहे होते हैं कि कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जो है वो इम्तिहान नहीं है बल्कि मजाक चल रहा है। कोई ऐसा पर्चा अभी तक नहीं है कि जो आउट ना हुआ हो। शायद खबर वो बने कि आज पेपर आउट नहीं हुआ है और आज जो है वो पेपर फिर दोबारा आउट हो गया है। रियासी 2 का पर्चा है जो इम्तिहानी मराकज़ पे पहुंचने से पहले ही यानी कि तकरीबन 35 से 40 मिनट कबल बआसानी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुपों में गर्दिश कर रहा है। उसके साथ उसका हलशुदा पर्चा भी मौजूद है। अब इस पे जो है वो जब इंटर बोर्ड इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जाती है तो वो सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इंटर के इम्तिहानात चल रहे हैं और किसी भी किस्म की कोई नकल नहीं हो रही है, लेकिन पर्चे जो है वो सोशल मीडिया पर जरूर आ रहा है और इस हवाले से वो कोई भी जवाब देने से कासिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अशरफ, अपडेट कर रहे थे। उधर सिंध में भी पर्चा आउट होने का सिलसिला ना रुक सका। मेहरापुर में सक्कर बोर्ड की 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि सिंध में भी कराची की तरह पर्चे आउट होने का सिलसिला ना रुक सका। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन आज़ाद से। अबरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेहरापुर में भी 12वीं जमात का सक्खर बोर्ड के तरफ होने वाला केमिस्ट्री का पर्चा आउट होकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो चुका है। इंतजामी बूटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना से गुरेजा है। इंतजामिया की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और पेपर आउट नहीं हो रहे, मगर उसके बावजूद दीगर कई इम्तिहानी सेंटर्स में जो पर्चे हैं वो वक्त से कबल ही आउट होकर व्हाट्सएप ग्रुप से पहुंच जाते हैं और उनके हलशुदा पर्चे भी 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम सवालात मुयस्सर आ जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अबरार, अपडेट कर रहे थे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पेशावर में 6 और सूबे के दीगर अजला में 3 रोज़ा इस मुहिम में 76 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल ने मुहिम के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत महकमा सेहत को प्राइवेटाइज कर रही है, जिसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर मुहिम के बॉयकॉट का फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे पेशावर में अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, बताइएगा क्या तैयारियाँ हैं। पेशावर में इंसदादी पोलियो का जो मुहिम है वो 6 रोजा होगा और सूबे के जो दीगर अजला है वहाँ पर 3 रोजा मुहिम है। पेशावर में खुसूसी मुहिम चलाया जा रहा है और इसके लिए तकरीबन इस जिला पेशावर में 10 साल तक जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं और बाकी जो अजला है वहाँ पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए जा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टरों ने बाइकाट कर रखा है और उनका कहना है कि हुकूमत उनकी डिमांड नहीं मान रही। अभी नई पॉलिसी महकमा सेहत मुतारिफ करा रही है जिसके तहत रीजनल हेल्थ अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो कि डॉक्टर कम्युनिटी जो है इसके खिलाफ है। और उनका ये कहना है कि RHA और DHA का जो कानून है अगर वो पास होता है तो ये महकमा सेहत को प्राइवेटाइज करने की कोशिश है और जो निजी अस्पताल हैं, जो वहाँ पर जो अस्पताल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तहसील लेवल के और BHU लेवल के जो अस्पताल हैं उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ पूरे सूबे के डॉक्टर जो है काफी दिनों से एहतजाज पर है और आज उन्होंने पोलियो मुहिम का भी बाइकाट कर रखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान, अपडेट कर रहे थे पेशावर से। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। में सादाबाद पहले पहुंचे हैं जहां उनका इंतहाई
पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सादाबाद पैलेस पहुँचे हैं और इंतहाई पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया गया है ईरान की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। और उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँचे हैं और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़रा भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा इस दौरे पर मौजूद हैं और ये आप मनाज़िर देख सकते हैं। इंतहाई पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। घोड़ों की मैयत में उन्हें साथ लाया जा रहा है सादाबाद पैलेस में और ये मनाज़िर उस मंज़र से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं जिस तरह शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को प्रोटोकॉल दिया गया था इस्लामाबाद में। और इस वक्त ईरान के सदर हसन रूहानी भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से भी मिलेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह ईरान के सदर हसन रूहानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इस्तकबाल कर रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने स्याह शेरवानी ज़ेब-ए-तन कर रखी है और उन्होंने ईरान के सदर हसन रूहानी से मुसाफा किया और अब वो सादाबाद पैलेस के अंदर दाखिल होने लगे हैं। एक बहुत वालिहाना इस्तकबाल किया गया है ईरान की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कि पाक ईरान ताल्लुकात की जो गहराई है उसको वाज़े करता है। ईरान ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की जानिब से भी पिछले दिनों ट्वीट किया गया था कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को कमज़ोर नहीं कर सकते। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है सादाबाद पैलेस पे।
You're watching Press TV. This is basically one of the latest segments of a formal reception in Iran's presidential palace, where the high-ranking officials of Iran and the visiting country take a walk in front of the Iranian flag, and basically a group of the elite Iranian military इमरान खान forces. गार्ड ऑफ ऑनर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ईरान के सदर हसन रूहानी के हमरा इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रही हैं। मनाज़िर आप देख सकते हैं। तेहरान के सादाबाद पैलेस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शानदार इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त ईरान के सदर हसन रूहानी के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने के बाद लोगों से फर्दन मुलाकात भी कर रहे हैं। इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए और दोनों ममालिक के दरमियान जो पुरानी दोस्ती है उसका भी ख्याल रखा गया। ईरान और पाकिस्तान दोनों ना सिर्फ बरादर हमसाया मुल्क हैं बल्कि दोनों इस्लामी मुल्क भी हैं। और पिछले दिनों ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की जानिब से भी ये ट्वीट सामने आया था कि कोई भी दहशत गर्दी का वाक़या पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को कमज़ोर नहीं कर सकता, जिसे सिफारती हलकों में इंतहाई खुशाइंद करार दिया गया था। ईरान के सदर हसन रूहानी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तेहरान के सादाबाद पैलेस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँचे हैं, जहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इम्कान है कि मुतअद्दिद MOUs के ऊपर भी दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत और दीगर मामलात को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। ये मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा ईरान के मौके पर शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। और यहाँ बुलेटिन में आपको बताएं, श्रीलंका को दहशत गर्दों ने लहूलुहान कर दिया। गिरजाघरों, होटल्स और दीगर मकामात पर बम धमाकों में मरने वालों की तादाद 290 से तजावुज़ कर गई। पुलिस ने 24 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। कोलंबो पर दहशतगर्दों के वार, गुज़िश्ता रोज यके बाद दीगरे 8 धमाकों से श्रीलंका लरज़ उठा। गिरजाघरों में मसीही बरादरी को ईस्टर के मौके पर दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। गिरजाघरों, होटलों और दीगर मकामात पर 8 बम धमाकों में मरने वालों की तादाद 290 से तजावुज़ कर गई। हलाक होने वालों में 35 गैर मुल्की शामिल, 5 भारतीय, 5 बरतानवी, चीन और डेनमार्क और तुर्की के 2 शहरी शामिल हैं, जबकि 6 पाकिस्तानी जख्मी हुए। कोलंबो एयरपोर्ट के करीब पाइप बम बरामद, पुलिस ने बम नकारा बना दिया। Colombo airport in Sri Lanka and they have been defused. Remember, जबकि धमाकों में मुलव्विस मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मौसम के हवाले से आपको बताएं, महकमा मौसमियात की मंगल से मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश, जालाबारी का इम्कान। बारिशों का नया सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब पंजाब और सिंध में सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आज दर्ज हरारत हैदराबाद में 40, सक्खर में 44, लाहौर में 38 और मुल्तान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। हालिया बारिशों के बाद गर्मी एक बार फिर अपना रंग दिखाने लगी। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। कोयटा और दीगर इलाकों में मौसम का मज़ीद हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़म उल्फत से। आज सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशेंगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने कल से बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों से बादलों का एक नया सिलसिला दाखिल होने की पेशेंगोई भी की है। मंगल से जुमेरात तक बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशेंगोई की गई है। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों आलिया बारिशों से जो मुसलसल 5 रोज़ तक जारी रहे, उससे बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में नुकसानात हुए हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए बारिश और सैलाब से जो मुतासिर हुए हैं जो इलाके और अवाम, उनकी बहाली के लिए वफाकी हुकूमत को 10 अरब रुपए का ग्रांट
لینے کے لیے ایک خط بھی لکھا ہے کہ فوری طور پہ انہیں فنڈز ریلیز کی جائے تاکہ وہ متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے اقدامات کر سکے. جی کھیلوں کی دنیا سے آپ کو بتائیں تیاریاں مکمل ہو گئی. مقابلے کی گھڑی اب دور نہیں. پاکستان ٹیم کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے آج رات انگلینڈ روانہ ہوگی. آنے والے چیلنجز کے لیے پاکستان ٹیم نے لاہور میں خوب تیاریاں کی لیکن روانگی سے پہلے ٹیم کو زوردار جھٹکا لگا جب شاداب خان ہیپیٹائٹس کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہو گئے. پاکستان ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے خلاف 5 ون ڈے اور 1 T20 میچ کی سیریز کھیلے گی. ورلڈ کپ میں پاکستان کا پہلا میچ 31 مئی کو ویسٹ انڈیز سے ہوگا. آج پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر پریس کانفرنس بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہی 10 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے